Hello my dear friends, welcome back. This is Nikita. Today in this video we will study about inherent limitations of an audit. What do you mean by this word inherent? Inherent limitations of audit. What do you mean by this word inherent? Inherent is nothing but which is at the beginning. At the beginning itself there are certain limitations. Whenever the auditor is conducting an audit of a particular entity, there is always certain limitations which is attached at the beginning itself that an auditor and everyone must know about it. As per SA 200, overall objectives of independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. There are definitely so many standards in standards on auditing. Among them, SA 200, it will define about objectives of auditor, which we have studied in the previous video, along with in the conduct of an audit, in how you are going to conduct your audit of a particular entity, that in accordance with standards on auditing. So the first point given here is the auditor is not expected to reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of an audit. What are those inherent limitations which are given below? So basically, whenever we are conducting an audit, we cannot have an absolute assurance. That means we are not providing 100% of assurance that whatever the audit we are doing is free from material misstatement. Risk of material misstatement, which we have studied in the previous video, we have ensured about, also explained about reasonable assurance and as well as absolute assurance. Here, whenever we are conducting an audit, whenever the auditor is going to conduct an audit, he cannot able to give an assurance, 100% assurance, whatever the 100% audit procedures which he is going to apply is free from material misstatement. He can able to reduce the audit risk to an acceptably lower level, but he cannot reduce it to complete zero level. That's what we are saying. He is not expected to can't reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. That's why we will call it as there are certain inherent limitation, which is at the beginning of the audit itself you have to understand there are certain inherent limitations of an audit. So the auditor is not expected to reduce the risk at zero level and he cannot able to give an absolute assurance that to state that financial statements are free from material misstatement. Limitations of an audit. First point is nature of financial reporting. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी क्या होता है, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें आके मैनेजमेंट का अपना डिसीजन यानी कि अपना जजमेंट इन्वॉल्व होता है, राइट. हर एंटिटी का अपना फैक्ट्स होता है, हर एंटिटी का अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं. उन दोनों को मद्देनज़र पे देखते हुए हमको मैनेजमेंट जजमेंट लेता है एंड दैट जजमेंट ऑल्सो इट इज़ नॉट श्योर कि वो करेक्ट है या नहीं है. इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन. सो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमको आगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 10 करोड़ का प्रॉपर बिल या इन्वॉइस चाहिए. आप मैनेजमेंट से जाके पूछते हो कि हमको 10 करोड़ का इन्वॉइस चाहिए. मैनेजमेंट विल गिव यू सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, आप भी मान लेते हो और उसके बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करके ऑडिट कंप्लीट करते हो. बट वो जो कॉपी भेजा है दैट इज़ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है क्या ऑडिट एविडेंस के लिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट श्योर. बिकॉज ये बेसिकली जो ऑडिटर लेता है वो मैनेजमेंट के जजमेंट के बेसिस पे लेता है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट सर्टेन कि वो एग्जैक्टली करेक्ट है. मान लो कि कोई फेक बिल ही दे दिया, कोई नकली जाली बिल बना के दे दिया, फिक्टिशियस हो गया, हो सकता है. सो दैट इज़ ऑल्सो हो सकता है. जो अनसर्टनिटी होती है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द limitations of an audit. That's what we are saying here. The preparation of financial statements involves judgment by management. That is going to apply in financial reporting framework to the facts and circumstances of the entity. In addition, many financial statement items involve subjective decisions. काफ़ी सारे आइटम्स जो होते हैं जैसे एक्सपेंस का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, इट इन्वॉल्व्स अ सब्जेक्टिव डिसीजन. ठीक है, चलो ले लेते हैं इन्वॉइस, मैंने जो सॉफ्ट कॉपी भेजा है एक्सेप्टेबल है, असेसमेंट ले लेते हैं. There is always involvement of degree of uncertainty that leads to acceptable interpretation and judgment. So in this case, this is also will form a part of inherent. अभी second point आता है nature of audit procedures. Nature of audit procedure, yeah, this is also one of the inherent limitations of audit. बिकॉज हम जो भी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं हम ये अश्योर नहीं कर सकते 100% कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस दें जो भी हम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा करेक्ट है, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस्टेटमेंट है, जो फ्रॉड भी नहीं है, एरर भी नहीं है, हम ऑडिट रिस्क को पूरी तरह जीरो लेवल में डाल रहे हैं. इसका भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन. दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग अबाउट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस भी है.
to get audit evidences. For example, there is a possibility, यहाँ पे एक और पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट आके इंटेंशनली या अनइंटेंशनली he doesn't able to provide the complete information that is relevant to the preparation and presentation of financial statement. Preparation and financial statement बनाने के लिए, preparation and presentation of financial statement बनाने के लिए हमको complete information की ज़रूरत होती है. इन दैट केस मैनेजमेंट आके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इंटेंशनली हो सकता है या अनइंटेंशनली. इंटेंशनली करेगा तो फ्रॉड में जाएगा, अनइंटेंशनली करेगा तो वो एरर में जाएगा. तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन. जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दे रहा है. सेकेंड पॉइंट, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम डिजाइन टू कंसील इट. Therefore, audit procedures used to gather audit evidence that may be ineffective for detecting an intentional misstatement. And for example, collusion to falsified documentation that cause the auditor to believe audit evidence is valid, but it is not. The auditor is neither trained nor expected to be trained in the expert in the authentication of document. यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉड भी एक चीज़ हो सकती है. जब भी हम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इंश्योर भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एरर है या फ्रॉड है. हमको ऑडिटर को ही डजंट नो अबाउट इट वेदर इट इज़ अ फ्रॉड और एरर. ही डजंट हैव ए ट्रेनिंग और ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन आइडेंटिफाइंग द फ्रॉड. उसको ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वो आके फ्रॉड को आइडेंटिफाई करो. चलो क्राइम डिपार्टमेंट आया, उसके पास जाके फ्रॉड को आइडेंटिफाई. ही डजंट हैव ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग. सो यहाँ पे फ्रॉड भी एक इन्वॉल्व हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो ए सोफिस्टिकेटेड मेथड दैट टू डिज़ाइन टू कंसील इट. सो ये भी एक लिमिटेशंस बन जाती है. देन ऑडिट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग. ऑडिट आके ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं. ऑडिट इज़ नॉट ए इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट मतलब क्या होता है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं. इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं कि डीपर जब हमको पता चलता है कि इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड इन्वॉल्व हुआ है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन होता है. उससे पहले ऑडिट ही चलता है. हियर ऑडिटर इज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी ट्रेनिंग और ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट in checking the authentication of documents, right? And accordingly, auditor is not given a specific legal power such as the power of search which is necessary for investigation. ऑडिटर को ये पावर नहीं दी जाती कि जाके तुम सर्च करो. पावर ऑफ सर्च नहीं दिया है. सीपीसी या सीआरपीसी में दिया हुआ है पावर ऑफ सर्च. इसीलिए ऑडिट इज़ एन ऑडिट विच इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं. बट दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, पावर ऑफ सर्च दी जाती है, बट ऑडिट में पावर ऑफ सर्च नहीं दी जाती. वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स होता है विद स्पेशल पर्पस. मतलब जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लग रहा है कि इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व हुआ है, तभी वो आके इन्वेस्टिगेशन में एंटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द ऑडिट्स whether fraud really exists, it takes the character of investigation. फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑन द अदर हैंड, as we have already discussed, is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, to express an opinion. Therefore, audit is never started with a preconceived notion. Preconceived notion के साथ start नहीं होता है about state of affairs, about wrongdoing. Audit करते समय हमारे मन में ये नहीं होता है कि यहाँ पे हाँ गलत कुछ हुआ है, fraud हुआ है, error हो रहा है. It is not started with preconceived notion about some wrong having been committed. कुछ गलत हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना सोच के हम ऑडिट करते हैं. ऑडिटर seeks to report when he finds in normal course of examination of accounts. जब भी ऑडिटर को लग रहा है कि नॉर्मल एग्जामिनेशन में कुछ एरर हुआ है, then he has to report it. However, it is quite possible that sometimes investigation results from prima facie findings of the auditor. हाँ, इन्वेस्टिगेशन कभी कभी एंटर हो जाता है जब भी हम ऑडिटर आके पूरा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करके when he is going to find certain errors or fraud, that time it may enter into the investigation. It may happen that auditor have given some findings of serious concern. Such findings may prompt for calling an investigation. ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर जब भी कुछ फाइंडिंग्स कर रहा है तो ही इंश्योर कि यहाँ पे सीरियस कंसर्न है, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास. मान लो कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 10 करोड़ है और पावर एंड फ्यूल का तो 20 करोड़ है. कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इमटीरियल अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है जहाँ पे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो रही है, देन इट विल कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ये मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल. ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स SW and Associates. ये फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंट है SW and Associates. He was appointed to audit the books of accounts of Efficient Vibrant Limited. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आके Efficient and Vibrant Limited का चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब ऑडिट कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. वाइल ऑडिट करते समय मिस्टर यस, जो कि वन ऑफ द पार्टनर्स है SW and Associates, उसने ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया?
that the management and other senior employees of the above mentioned company were not cooperating in providing required information. ऑडिट करते समय मिस्टर एस को पता चला मैनेजमेंट आके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो कोऑपरेट नहीं कर रही है टू हिम एंड एज वेल एज द ऑडिट टीम मेंबर्स. This is not so cooperative behavior of management and senior employees of efficient and vibrant. That is also one of the considered as inherent limitations of SW and Associates, thereby preventing the auditor from expressing an opinion on the financial statements of efficient and vibrant limited. पार्टनरशिप फर्म है SW एसोसिएट, वो ऑब्जर्व किया कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए कंपनी की तरफ से वो नहीं मिल रहा है, मैनेजमेंट एंड अदर सीनियर एम्प्लॉयज़ उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन है, यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहा है. दैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट कमिंग ईयर इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट. ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑडिट स्टार्ट हो रही है जून में ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी, जून में स्टार्ट हो रही है, दिसंबर में चलता ही जा रहा है एंड इट वाज लाइक दिसंबर में ऐसा कुछ कंप्लीट हुआ. उस बीच में काफ़ी सारे महीने गुजर गए. जितना टाइम आगे चलता रहता है उतना रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन और उसकी वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही पीछे छूटती चली जाती है. कभी कभी वो वैलिड ही नहीं माना जाता है. तो इसके बेसिस में भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि उस समय में जो इन्फॉर्मेशन मिला और दिसंबर के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन मिला दैट इज़ नॉट रेलेवेंट ऑल्सो. सो रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ओमिट होता जाता है. सो दैट्स द गैप एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट. मतलब ये गैप होने से कॉस्ट भी बढ़ता जाता है, एट द सेम टाइम बेनिफिट से भी पीछे हटते जाते हैं. सो यू हैव टू इंश्योर कि बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट. So this is also one of the inherent limitation. The matter of difficulty, time and cost involved is not in itself a valid basis to omit an audit procedure for which there is no alternative. Appropriate planning assistance making sufficient time and resources available. Appropriate planning होना ज़रूरी होता है, कितने टाइम में ऑडिट कंप्लीट करना होता है. अदरवाइज इन्फॉर्मेशन जो होता है वैलिड नहीं होता है. यू विल हैव अ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट बिकॉज टाइम, कॉस्ट, money, benefit, everything is involved here, right? Notwithstanding this, the relevance of information, its value tend to diminish over time. ये समय के साथ साथ अपना information भी अपनी value खो देता है. And there is a balance to be stuck between the reliability of information and its cost. This is one of the inherent limitation. Time जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे अपने वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी डिमिनिश होता जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अदर मैटर्स दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट. काफ़ी अदर मैटर्स हैं जैसे कि लाइक फ्रॉड हो गया, सीनियर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है या एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है. उस समय में भी ऑडिटर कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन बिकॉज यू विल हैव मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स. कभी कभी बीच मिडल ऑफ द ऑडिट में किसी का एम्प्लॉयज़ या फिर सीनियर मैनेजमेंट के साथ कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं. यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि अब क्या करें एट द बिगिनिंग इटसेल्फ. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट. एट द सेम टाइम यू विल हैव अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन. मान लो कि कोई एंटिटी है, वहाँ पे बच्चे लेबर बिलो 18 ईयर्स आके जो चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो इलीगल. यहाँ पे भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है विद द लॉज एंड रेगुलेशंस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन जो भी आपके ओपिनियन के ऊपर लिमिटेशन क्रिएट करेगा. फ्यूचर इवेंट्स दैट मे कॉज टू गिव ए क्वेश्चन मार्क ऑन गोइंग कंसर्न. कंपनी कंटिन्यू होगा या नहीं पता नहीं. हम कोई ज्योतिष विद्या पढ़ के रखे क्या कि हमको पता चले फ्यूचर में आके कंपनी गोइंग कंसर्न होगी या नहीं, कंटिन्यू होगा या नहीं. So this is also one of the inherent limitations of an audit. One is fraud, then related party relationships and transaction, non-compliances with the laws and regulation, at the same time future events that raise a question mark on going concern. Next we will have some illustration. Let's see that. Illustration number 2. MNO Limited requested the auditor CAP to provide for absolute assurance in respect of its 10 branches scattered in Delhi and confirm that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Advice. क्या ऑडिटर दे सकता है अरे एब्सोल्यूट एश्योरेंस, चाहे वो 10 ब्रांचेस स्कैटर्ड हो या 100 ब्रांचेस स्कैटर्ड हो? क्या ऑडिटर दे सकता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस? नो.
ही कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ही कैन ओनली गिव द रीजनेबल एश्योरेंस, जो कि वो नहीं दे सकता। 100% ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो अप्लाई कर रहा है दैट इज़ फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, या उसके ऑडिट रिस्क को कम्प्लीटली ज़ीरो बना दो, ये ऑडिटर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एबल टू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सो सोल्यूशन, the auditor is not expected to reduce the audit risk to zero, cannot obtain reasonable assurance that are free from material misstatement due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of audit. Audit के अंदर काफ़ी सारे inherent at the beginning limitations है which result in most of the audit evidence on which auditor draws conclusions and bases the opinion persuasive rather than conclusive. Conclusive evidence दे ही नहीं सकता ना, concluded मतलब 100% correct है, conclusion देता ही नहीं, अपना decisions जो होता है, अपना conclusion जो होता है, अपना base जो बनाता है opinion, वो सब pervasive होता है, हो सकता है less than 100% होता है, not 100% correct. In view of this, CAP cannot provide absolute assurance to Manual Limited. तो यहाँ पे short form में दिया हुआ है inherent limitations क्या क्या है। इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऐसे 200 का जिक्र करना चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ये रिस्क रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास इनहेरेंट लिमिटेशंस है। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते समय हम जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, जो कि अनसर्टेनिटी होती है या फिर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सब्जेक्टिव डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आके नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो भी हम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं इट हैज़ इट्स ओन प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, जैसे कि लाइक मैनेजमेंट को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, या फ्रॉड भी हो सकता है, या फिर ऑडिट आके इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि तू फाइंड आउट करे दैट देयर इज़ एन अलेज्ड रॉन्ग डूइंग। यहाँ पे इंश्योर एक और लिमिटेशन है कि टाइमलीनेस, जैसे जैसे टाइम जाता है इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंस एंड वैल्यू डिमिनिश होती जाती है। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। अदर मैटर्स क्या क्या है, जैसे कि फ्रॉड हो सकता है, दैट इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व योर सीनियर मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स भी हो सकता है इन द मिड ऑफ ऑडिट, जो कि आके डिस्क्लोज नहीं किया हो। एट द सेम टाइम यू विल हैव नॉन कंप्लायंसेस विद द लॉस एंड रेगुलेशन, फ्यूचर इवन दैट रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट यू विल हैव, ये एक शॉर्ट है, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है सो दैट यू कैन एबल टू रिमेंबर इजीली। नाउ यू विल हैव अ इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अब क्या बोल रहा है, DEF and Co Chartered Accountants successfully carried out the audit of Shree Garments for financial year 2019-20. After the completion of the audit, they would found material misstatement due to fraud in the financial statements, which were not noticed and reported by the auditor. Management alleges that it is a failure on the part of the auditor. क्या आपको लगता है ये failure है? What the question is saying? DEF Chartered Accountants audit कर रहा है 1920 का श्री गारमेंट्स कंपनी का। जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हुआ उसने फाउंड किया कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड हुआ है ड्यू टू ऑडिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दीज वर नॉट नोटिस। जब ऑडिट करते समय उस टाइम ऑडिटर को पता नहीं चला कि यहाँ पे फ्रॉड वगैरह हुआ है, बट ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व हुआ है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑडिटर ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया है, इट इज़ फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। ऐसा नहीं होता है, जब भी ऑडिट करते हैं देयर इज़ ऑलवेज एन इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, अनअवॉइडेबल रिस्क होता है दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिडक्टेड। ऐसा हो भी सकता है जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं मई जून महीने में, दिसंबर आते आते वी आर नॉट श्योर दैट द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, वी आर नॉट एट ऑल श्योर कि बीच में कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, बिकॉज आर प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस कि 100% आके ऑडिट प्रोसीजर जो भी अप्लाई करते हैं दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे रहे, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस, एंड ऑल्सो ऑडिट रिस्क रिड्यूस्ड टू अ considerably acceptably lower level. There is an always unavoidable risk that material misstatement may not be deducted even though audit is properly planned and performed. अगर even though देखो auditor even though properly प्लान होके या परफॉर्म होके कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टिल देयर आर सर्टेन मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ऑडिट हो गया उसके बाद भी पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑडिट प्रोसीजर पहले तूने अप्लाई किया है वो गलत है, इट्स नॉट लाइक दैट। अकॉर्डिंगली द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड डज नॉट बाई इटसेल्फ इंडिकेट ए फेल्यूर। ऑडिट प्रोसीजर में गलती हो गई सीधा नहीं बोल सकते कि बाद में आपको कोई भी डिस्कवरी ऑफ एरर ऑफ फ्रॉड हुआ है तो। हाउएवर the inherent limitations is not a justification for the auditor to be satisfied with less than pervasive audit evidence. Whether the auditor has performed an audit
इज डिटरमाइंड बाय द ऑडिट प्रोसीजर. जो भी ऑडिट करा है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. ही हैव्स हिज ओन प्रोसीजर. उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करता है देयर इज अ सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, एंड दैट लीड्स टू सूटेबिलिटी बेस्ड ऑन द एवल्यूशन ऑफ एविडेंस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर. जब भी ऑडिट करता है ही ऑलवेज हैव सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर कि इसके बेसिस में मैंने ऑडिट किया है और इसके बेसिस पे मेरा सफिशिएंट या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस फॉर्म हो रहा है, एंड इन दैट बेसिस यू आर फॉर्मिंग एन एविडेंस. इस बेसिस पे आप ऑडिट करते हो. ऐसा नहीं बोल सकते भाई ऑडिट हो गया और बाद में पता चला फ्रॉड कि तुमने ये किया है तो फिर तुम्हारा पूरा ऑडिट प्रोसीजर ही गलत है. ऐसे नहीं बोल सकते बिकॉज दैट टाइम दैट इन्फॉर्मेशन वॉज रेलिवेंट फॉर हिम एंड उसके बेसिस पे हमने ऑडिट प्रोसीजर लिया एंड वी आर कंडक्टिंग एन ऑडिट. So in that basis you are not forming an opinion. You should have an evidence before you are evaluating anything in accordance with the objectives of auditor. So basically these are the limitations of an auditor: nature of financial reporting and nature of audit procedure, and timeliness of financial reporting, balance between benefit and cost, और other matters होते हैं जैसे fraud वगैरह, गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन करना या फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. सो ऑल दीज आर बेसिकली overall coverage of inherent limitations of an audit. So that's it for today. Hope you like this video. अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए. So that's it. Thank you so much. See you.